Yes, take out illustration number 55. Illustration number 55, page number 7.97. Page number 7.97. Illustration number 55. ये क्या कह रहे हैं? Navlakshmi Limited issue a prospectus, invited application for 50,000 shares of rupees 10 each. These shares were issued at par on the following terms: 3 on application, 4 on allotment, first call rupees 2 and final call for the balance. Application were received for 60,000 shares and allotment were made on the following basis: to the applicant of 10,000 shares full, to the applicant of 20,000 share 15,000 and to the applicant of 30,000 share 25,000. All excess amount paid on application is to be adjusted against the amount due on allotment. Shares were fully called and paid except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of the group applying for 20 shares. All the shares on which the calls were not paid were forfeited by the company, by the directors. 1,000 of the forfeited shares were reissued as fully paid up on receipt of 8 per share. अब अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कंपनी है जो अपने 50,000 शेयर्स इशू कर रही है. 50,000 शेयर्स इशू कर रही है रुपीज 10 ईच of rupees 10 each, payable 3 on application, payable 3 on application, payable 4 on allotment, payable 4 on allotment, payable 2 on first call, payable 2 on first call and balance amount on final call. So total issue price of share is 10. तो आउट ऑफ 10 3 एप्लीकेशन में मंगा लिए, 4 अलॉटमेंट पे एंड 2 फर्स्ट कॉल पे. तो 3 + 4 7 + 2 9. तो आउट ऑफ 10 9 कॉल्ड हो गया. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 1. तो ये किस पे मंगा रहे अपन? सेकंड कॉल पे. 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव to the applicant of 10,000 shares full. Out of 60,000, applicant of 10,000 share get full allotment. It means out of 60,000, out of 60, 10,000 applicant get full 10,000 shares. Out of 60,000, 20,000 shares, 20,000 applicant can get 15,000 shares, and out of 60,000, 30,000 applicants get 25,000 shares. 25,000 shares. All the excess amount paid on applications to be adjusted against the amount due on allotment. अब क्या कह रहा है? यहाँ पे एक शेयरहोल्डर है who applied for 2,000 shares, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था. वन शेयरहोल्डर हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स failed to pay allotment, first call and second call, and after second call his share is forfeited by the company. एंड ये जो शेयर है ये किस पे बिलोंग कर रहा है? ही बिलोंग्स टू ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स. यानी किसको बिलोंग कर रहा है? ये बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है. किसको बिलोंग कर रहा है? बी कैटेगरी को. तो ये जो 2,000 शेयर है जिसने अप्लाई किया था, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी बी. तो ये बी कैटेगरी को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है. और इसने क्या करा? अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा.
and after second call his share is forfeited by the company. Out of the forfeited shares, 1000 shares were reissued by the company at rupees 8 per share fully paid up. 8 per share fully paid up. क्या मतलब है इस fully paid up का? fully paid up का मतलब है कि जो 10 का शेयर है उसके अभी 8 रुपीज मंगा रहे और अब इन फ्यूचर और कुछ भी अमाउंट अब अपने शेयरहोल्डर से नहीं मंगाएंगे, तो इट मींस 10 का शेयर 8 में री इश्यू हो गया, यानी 2 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट दिया है, 2 रुपीज के डिस्काउंट पे शेयर को री इश्यू करा है. फुल्ली पेड अप का मतलब होता है इन फ्यूचर अब और कोई अमाउंट अपन अपने शेयरहोल्डर से कॉल नहीं करेंगे, तो यानी 2 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया. राइट, समझ में आ गया क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 60,000. तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर. तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3. सेकेंड एंट्री अपन करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर अलॉट करने अपन को, 50,000 शेयर्स अलॉट करने. सो जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 into 3 to share capital 60,000 into 3. Sorry. कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को, 50,000 शेयर्स अपन को अलॉट करने. तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3. कितने शेयर्स लॉट करने थे, 50,000. नाउ नेक्स्ट एंट्री करेंगे काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की. तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर allotment account debit 50,000 into allotment money is 4 per share. तो share allotment account debit 50,000 into 4 to share capital 50,000 into 4. अब नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी काय की, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. लेकिन यहां पे क्या हुआ, 50,000 शेयर इश्यू करने थे, 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. तो 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस में रिसीव हो गई. 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी अपन को रिसीव हुआ है, इस अमाउंट को आपने आगे कहां एडजस्ट करा है, तो उसके अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट. फर्स्ट कॉलम होता है हमारा इस वर्किंग नोट का क्या, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव. सेकंड कॉलम होता है आपका क्या, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन. नेक्स्ट होता है आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, देन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, then adjusted on second call, और last column is refund. Now 3 कैटेगरी
सबसे पहले ए कैटेगरी, इन ए कैटेगरी 10,000 application were received and application money is ₹3 per share. Application money is 3 per share. तो 30,000 रुपीज रिसीव हुए एप्लीकेशन पे, 30,000 रिसीव हुए। कितने शेयर अलॉट करें ए कैटेगरी में? पूरे 10,000 शेयर अलॉट हो गए हैं। सो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज इसके एडजस्ट हो गए कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो ए कैटेगरी में कितने अमाउंट रिसीव हुआ था? 30,000 रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, और पूरा का पूरा 30,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो ना तो कुछ अमाउंट आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना कुछ अमाउंट आपका रिफंड होगा। ना बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है? 20,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। सो 20,000 इंटू 3 कितना रिसीव हुआ? 60,000 रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए? 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट करें? 15,000। सो 15,000 इंटू 3 तो 45,000 रुपीज एडजस्ट हो गए कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो इन बी कैटेगरी 60,000 रुपीज रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 60,000 45,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो जो रिमेनिंग 15,000 है, रिमेनिंग 15,000 रुपीज ये आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अब एक बार चेक कर लो, बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था? कितने शेयर्स अलॉट करे थे? 15,000 एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 4 पर शेयर। तो 15,000 इंटू 4 कितना होता है? 60,000 होता है, जबकि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 15,000 ही है। तो इसलिए पूरा का पूरा 15,000 का एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं है, सेकंड कॉल नहीं होगा, ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। सी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है? 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। सो 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना है? 90,000 रुपीज रिसीव हुए। कितने? 90,000। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 25,000 शेयर्स अलॉट हुए सी कैटेगरी में। सो 25,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हुआ? 75,000। तो इन सी कैटेगरी 90,000 रुपीज रिसीव हुए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसमें से कितने शेयर्स अलॉट करे? 75,000 के। तो आउट ऑफ 90,000 75,000 का एडजस्ट हो गए, एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 15,000। सो दिस 15,000 रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो ये जो 15,000 है ये आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है उसमें से 30,000 रुपीज आपने एडजस्ट करा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं हुआ, सेकंड कॉल पे कुछ नहीं हुआ, ना कुछ अमाउंट रिफंड हुआ है। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी है? इसको किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है। तो एक्सेस में कितना रिसीव हुआ है? 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था? 3। तो 30,000 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। तो उस 30,000 को अपन ने कहा एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे। तो यहां लिखेंगे टू शेयर, हाँ कर सकते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 30,000। आप चाहें तो ये जो फोर्थ और सेकंड एंट्री इसको कंबाइंड पास कर सकते हैं सेकंड एंट्री के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव क्या होगी? अब यहां पे क्या कह रहा है? एक शोल्डर था जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, जो बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कह रहा है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो एक शोल्डर है जिसने 2,000 शेयर्स के लिए क्या करा है? अप्लाई करा है,
हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, जो बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कह रहे हैं उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। लेकिन आप इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हो कि इन बी कैटेगरी का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया है। ये जो बी कैटेगरी है इनको ऑलरेडी कुछ अमाउंट यहाँ पे अलॉटमेंट पे क्या हुआ है, रिसीव हो गया। यानी ये जो शेयरहोल्डर है इसका भी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया होगा। तो अब इसके लिए अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, यानी अब अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो शेयरहोल्डर है जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसका कितना अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है वो इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो बात आती है कितना अलॉटमेंट पे इसका रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट बचा है जो रिसीव नहीं हुआ, वो कैलकुलेट करना है। तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, इसके अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं। पहले आप इसके क्या निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या निकालोगे आप इसके, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो जब 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो अलॉटेड कितने थे, 15,000। अगर 1 शेयर के लिए अप्लाई करते तो अलॉटेड कितने होते, 15,000 अपॉन 20,000। और अगर 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कराए तो अलॉटेड कितने होंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 2,000। तो यहां से आपके निकलेंगे कितने ही है, 1500 शेयर्स। यानी इसने अप्लाई तो 2000 शेयर्स के लिए किया था, लेकिन इसको अलॉट कितने हुए, इसको 1500 शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए। कितने, 1500 शेयर्स को क्या हुए, अलॉट हुए। तो स्टार्टिंग में जब इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 पर शेयर है। तो 2000 इंटू 3 के हिसाब से इसने 6,000 रुपीज क्या हुआ, एप्लीकेशन जब इसने अप्लाई किया होगा तो इसने 6,000 रुपीज पे करे होंगे। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करें, कंपनी ने इसको 1500 शेयर्स अलॉट करें। तो 1500 इंटू 3 के हिसाब से इसका 4,500 रुपीज एडजस्ट हुआ होगा कहां पे, एप्लीकेशन पे। तो स्टार्टिंग में दिए कितने थे, 6,000। आउट ऑफ 6,000 4,500 एडजस्ट हो गया कहां पे, एप्लीकेशन पे। तो जो रिमेनिंग 1500 रुपीज बचे, ये 1500 का एडजस्ट हुआ इसके अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे कितने मंगाने, इसको 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे। अलॉटमेंट मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी है 4 पर शेयर। तो 1500 इंटू 4 के हिसाब से इससे अलॉटमेंट पे कितने मंगाने, 6,000 रुपीज मंगाने। तो आउट ऑफ 6,000 1,500 इसका ऑलरेडी आ चुका, 1,500 ऑलरेडी आ चुका। तो जो रिमेनिंग 4,500 बचा, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना, 4,500, ये रिमेनिंग बैलेंस इसने पे नहीं करा। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा है। समझ में आई बात। अपन को एंट्री काय की करनी थी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक शेयरहोल्डर जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। लेकिन अपन ने इस वर्किंग नोट में यहां क्या देखा कि इन बी कैटेगरी का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे हमें रिसीव हो चुका है। यानी जो बैलेंस अमाउंट बचा है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय दिस शेयरहोल्डर। इसलिए यहां पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो बात आ रही थी कितना अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ, वो अमाउंट अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपन ने पहले क्या निकाले, क्या दे रखे थे, ये अप्लाइड शेयर्स दे रखे थे, अप्लाइड दे रखे थे। तो अपन ने इसके पहले क्या निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकाले। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, बी कैटेगरी को। तो बी कैटेगरी का डेटा लिया, 15,000 अपॉन 20,000 इंटू 2,000। तो यानी इसको 1500 शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए। देखो अप्लाइड दे रखे थे, क्या निकालने, अलॉटेड। हमेशा होता क्या है कि शेयरहोल्डर अप्लाई तो ज्यादा के लिए करता है और कंपनी उसको देती कम है, नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो अलॉट होते कम है। तो एक तो तरीका समझने का है कि जब 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ था तो अलॉट कितने हुए, 15,000। अगर 1 शेयर के लिए अप्लाई होता तो अलॉट कितने होते, 15,000 अपॉन 20,000। और अगर इसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है
तो अलॉट कितने हुए 15 अपॉन 20,000 इंटू 2,000 कितने हो गए 1500 शेयर्स। और उसका एक रटने का तरीका है, क्या निकालने का, ये अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालेंगे अलॉटेड शेयर्स, और अलॉटेड होंगे तो क्या निकालेंगे अप्लाइड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स हमेशा कम निकलते हैं, तो ये छोटा अमाउंट डिवाइडेड बाय इस कैटेगरी का बड़ा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो कितने आ गए आपके 1500 शेयर्स आ गए। तो स्टार्टिंग में इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 2000 इंटू 3 के हिसाब से कितना अमाउंट पे करा 6000। कितने शेयर्स अलॉट हुए थे 1500, तो 1500 इंटू 3 के हिसाब से 4500 एडजस्ट हुआ कहां पे एप्लीकेशन पे। तो 6000 में से 4500 एडजस्ट हो गया कहां पे एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग कितने बचे 1500। तो ये जो रिमेनिंग 1500 है तो ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा कहां पे अलॉटमेंट पे। अब इससे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, टोटल 1500 शेयर्स अलॉट किए थे एंड अलॉटमेंट मनी इज ₹4 पर शेयर, तो यानी अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है 6000। आउट ऑफ 6000 1500 इज ऑलरेडी रिसीव इन एडवांस, इसका 1500 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ चुका है, तो जो रिमेनिंग बचा कितना 4500। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये इस शोल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, इसलिए यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट निकालेंगे, अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, टोटल कितने शेयर्स थे 50,000 शेयर्स थे टोटल, अलॉटमेंट मनी कितना है 4 पर शेयर, टोटल शेयर कितने थे 50,000 एंड अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है 4, तो टोटल आपको अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था 2 लाख, कितना मंगाना था 2 लाख लेस रिसीव इन एडवांस। आपको कितना एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव इन एडवांस, तो ये 30,000 आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया था, तो 2 लाख में से 30,000 आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया, तो बैलेंस कितना बचा 1,70,000, और ये आपका जो बैलेंस अमाउंट है 1,70,000 उसमें से आपको ये 4,500 रिसीव नहीं हुआ, तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव, लेस अमाउंट नॉट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 4,500 आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है 1,65,500, ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे क्या हुआ है रिसीव हुआ है। बोलो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं है कॉल से न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए, इससे नहीं किया मैंने, आप चाहो तो कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,500 टू शेयर अलॉटमेंट 1,65,500, समझ में आया। अलॉटमेंट पे कितने मंगाने थे 50,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना 2 लाख, आउट ऑफ 2 लाख 30,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया, तो बैलेंस कितना बचा 1,70,000, और आपका जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से आपको ये 4,500 क्या हुआ रिसीव नहीं हुआ, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,65,500। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,500 टू शेयर अलॉटमेंट 1,65,500। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे क्या आएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल का ड्यू कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री करनी कहेगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की,
अब देखो टोटल 50,000 शेयर होल्डर्स थे, टोटल 50,000 शेयर होल्डर्स थे। आउट ऑफ 50,000 एक शेयर होल्डर था जिसको अपन ने 1500 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट करे थे। इसने क्या करा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा, इसने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो 50,000 में से 1500 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी किससे रिसीव हुआ, 48,500 शेयर होल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 48,500 इंटू 2, 48,500 इंटू 2। फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज पर शेयर था, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे काय की, सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो आपकी एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 1। अब क्या कहते हैं, जो शेयर होल्डर है जिसको आपने 1500 शेयर्स अलॉट करे थे, इसने आपका सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो आउट ऑफ 50,000 शेयर्स 1500 शेयर होल्डर्स ने सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है किससे, 48,500 शेयर होल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 48,500 इंटू 1 टू शेयर सेकंड कॉल 48,500 इंटू 1। नाउ क्या कह रहा है आगे, आफ्टर सेकंड कॉल these 1500 शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने क्या करा, ये जो 1500 शेयर्स थे जिन पे अपन को अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ, कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट कर लिया। अब आपका शेयर काय पे इशू हुआ था, पार पे। फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी, 10, और आपने उसको 10 में ही इशू करा है, मतलब शेयर इशू काय पे हुआ है, पार पे शेयर इशू हुआ है। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, यहाँ पूरे 10 रुपीज कंपनी ने मंगा लिए हैं। तो 1500 इंटू 10 क्या क्रेडिट करते हैं, जिन भी कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ उन कॉल्स को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या क्या रिसीव नहीं हुआ आपको, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, ये 4,500। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, 4,500। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, पूरे 1500 इंटू 2, पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। टू शेयर सेकेंड कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ आपको, 1500 इंटू 1। एंड टू शेयर फॉरफीचर कितना अमाउंट फॉरफिट होगा, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो कैपिटल अमाउंट आप फॉरफिट कर लेंगे। तो एक तो एप्लीकेशन पे ये मिले थे 4,500 और अलॉटमेंट पे ये मिले थे 1,500। तो ये कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन पे 4,500 और अलॉटमेंट पे 1,500। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 6,000। तो ये 6,000 रुपीज कंपनी इसका क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने 1,000 शेयर्स को री इश्यू कर दिया। कैसे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में।
तो 10 के शेयर को 8 में री इश्यू कर रहे हैं, तो यानी 2 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो री इश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं, 1000, सो 1000 इंटू 8, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज का। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 1000 इंटू 10। अब लास्ट क्या होगा कि शेयर फॉर फीचर, जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए, जो शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उसका जो बैलेंस अमाउंट शेयर फॉर फीचर में है, वो बैलेंस अमाउंट अपन शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, कितना क्रेडिट किया था 6000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे 1500, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो गए 1000, और इसमें से अपन क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, कितने का डिस्काउंट दिया है 1000 इंटू 2, कितना हो गया 2000, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आएगा 4000 माइनस 2000, कितना आ गया 2000। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना 2000। बताइए समझ में आई बात, कोई डाउट किसी को किसी भी जनरल एंट्री में? नेक्स्ट निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 56। पढ़िए क्या लिखा है, एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। तो ये कंपनी है जो अपने 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है, 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है और रुपीस कितना, और ₹10 ईच। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट, पेबल बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आउट ऑफ 10 2 एप्लीकेशन में मंगा रही है, 3 अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस बचा 5, तो ये बैलेंस 5 किस पे मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे। 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव, 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। मतलब ये जो 3 लाख एप्लीकेशन है, इनको अपन ने 1 लाख शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए। 3 लाख को 1 लाख शेयर्स क्या हुए, अलॉट हो गए। अब इसकी नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा उसको आपको केवल अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती और अगर अलॉटमेंट के बाद भी अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बचता तो मैं उसको आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देता अगर होता तो, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, यानी अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो दैट अमाउंट इज रिफंडेड टू द इन्वेस्टर, टू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। फिर है एम अ शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर एम who applied for 3000 shares, who applied for 3000 shares, failed to pay the second call money, failed to pay the call money, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, and his share is forfeited by the company, and after first call his share is forfeited by the company and reissue, and this share is reissued at ₹8 per share
fully paid up, 8 per share fully paid up. fully paid up means कि 10 का शेयर है, 8 में रीइश्यू करा, और फुल्ली पेड में मतलब इन फ्यूचर और कुछ नहीं मंगाएंगे, तो यानी 2 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी. क्लियर है क्वेश्चन? यस. फर्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन आई है? 3 लाख. कितनी एप्लीकेशन आई है? 3 लाख. तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 2, 3 लाख इंटू 2. सेकेंड एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने आपको? 1 लाख. कितने शेयर्स अलॉट करने आपको? 1 लाख. तो आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 2 शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2. नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 3 2 शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3. अब वैसे तो नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी काय की? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. लेकिन क्या हुआ? 1 लाख शेयर इश्यू करने थे एंड 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव. 1 लाख शेयर इश्यू करने थे एंड 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव. तो 2 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सिस में रिसीव हो गई. 2 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सिस में रिसीव हो गई. तो ये जो 2 लाख एप्लीकेशन आपको एक्सिस में रिसीव हुई है, इसका अमाउंट आगे आपने कहां एडजस्ट करा? तो उसके अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट. First column is total application money received. First column is total application money received. Total application money received. Second column is adjusted on application. Next column is adjusted on allotment. Next column is adjusted on first call and last column is refund. तो यहां पे केवल एक ही कैटेगरी है. कितनी एप्लीकेशन आई? 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 3 लाख. एप्लीकेशन मनी इज ₹2 पर शेयर. यानी स्टार्टिंग में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 6 लाख रुपीज रिसीव हुए. कितने? 6 लाख रिसीव हुए. कितने शेयर्स अलॉट करने आपको? 1 लाख. सो 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2, तो 2 लाख रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहां पे? एप्लीकेशन पे. तो आउट ऑफ 6 लाख 2 लाख अपन ने एडजस्ट कर दिए कहां पे? एप्लीकेशन पे. तो अभी कितना अमाउंट बचा है? 4 लाख. 4 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है. अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1 लाख. एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर. तो 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 3 लाख. लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 4 लाख. एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 4 लाख है. 6 लाख आए थे. आउट ऑफ 6 लाख 2 लाख कहां एडजस्ट हो गए? आउट ऑफ 6 लाख 2 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 4 लाख. अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 3 लाख. तो 4 में से 3 लाख आपके एडजस्ट हो गए कहां पे? अलॉटमेंट पे.
कितने थे? 4 लाख थे। तो आउट ऑफ 4 लाख 3 लाख आपके एडजस्ट हो गए कहां पे? अलॉटमेंट पे। अभी भी आपका कितना बचा? 1 लाख बचा है। अभी भी आपका 1 लाख क्या है? रिमेनिंग है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। केवल आपको उसको अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। यानी ये जो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा बचा है अभी भी, इस अमाउंट को आप फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं करेंगे। ये 1 लाख रुपीज क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। ये 1 लाख आप रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में वो लाइन लिखी भी नहीं होती तो अपन इस 1 लाख को कहां एडजस्ट कर देते? फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देते। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, तो उस कंडीशन में ही जो 1 लाख ये कहां एडजस्ट होता? फर्स्ट कॉल पे। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ओनली। तो इसलिए जो 1 लाख है ये अपन ने क्या करा? रिफंड कर दिया। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ उसमें से 3 लाख तो आपने एडजस्ट कर दिए कहां पे? अलॉटमेंट पे। और 1 लाख रुपीज आपने कर दिए क्या? रिफंड। 1 लाख आपने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। तो अब क्या एंट्री पास होगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख आए। एक्सेस में कितना रिसीव हुआ? 4 लाख। आउट ऑफ 4 लाख 3 लाख अपन ने एडजस्ट करी अलॉटमेंट पे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 3 लाख। और अपन ने रिफंड कर दिया कितना? 1 लाख। तो 2 बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख। अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की तो एंट्री पास होगी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट पे ऑलरेडी सारा अमाउंट एडवांस में आ चुका है। सारा अमाउंट आ गया अलॉटमेंट पे एडवांस में, जबकि अपन ने तो 1 लाख रिफंड करा है। तो अलॉटमेंट को तो रिसीव करने की एंट्री होगी नहीं। तो अब सीधे नेक्स्ट एंट्री अपन काय की करेंगे? नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। समझ में आ गया अलॉटमेंट को रिसीव करने की क्यों नहीं होगी? क्योंकि अलॉटमेंट पे ऑलरेडी सारा अमाउंट अपन को एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो अब इसलिए दोबारा अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5। अब क्या कह रहा था? एक शोल्डर है एम हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो ये तो अप्लाइड ही दे रखे हैं, तो जो शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे उसका फर्स्ट कॉल मनी इसने पे नहीं किया होगा। तो अब इसके अपन क्या निकालते हैं? पहले नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 3000। यानी इसको 1000 शेयर्स, इसको 1000 शेयर्स क्या हुए होंगे? अलॉट हुए हैं, जिसका इसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। तो टोटल 1 लाख थे। आउट ऑफ 1 लाख 1000 शेयरहोल्डर्स का फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। यानी फर्स्ट कॉल मनी जो रिसीव हुआ वो कितने का? 99,000 शेयरहोल्डर्स का फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हुआ है। तो क्या एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 इंटू 5 टू शेयर फर्स्ट कॉल 99,000 into 5. Now, after first call, this share is forfeited by the company. This share is forfeited by the company. शेयर काय पे इशू हुआ था? पार पे। शेयर काय पे इशू हुआ था? पार पे।
तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? पूरे 10 मंगा लिए। 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 5 फर्स्ट कॉल पे। तो कितने हो जाएंगे? कितने शेयर्स दिए थे इसको? 1000। तो 1000 शेयर्स फॉरफिट होंगे। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? पूरी 10। तो 1000 इंटू 10। क्या पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट पे नहीं करा? 1000 इंटू 5 एंड 2 शेयर फॉरफीचर। बाकी जो भी अमाउंट इसने पे करा है वो सब अपन इसका फॉरफिट कर लेंगे। तो इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दोनों अमाउंट पे कर दिए हैं। तो 2 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, तो 5 रुपीज इसके क्या होंगे? फॉरफिट हो जाएंगे। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने क्या करा? दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे? 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। तो आपकी एंट्री क्या होगी री इश्यू की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट है? 2 का। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल कितना? 10,000 इंटू 10। 1000 इंटू 10। अब लास्ट क्या होगा कि आपके शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस है दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो आपकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे अमाउंट? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट किया था? 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट 1000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 1000 माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू कितना है? 2000। तो 5000 माइनस 2000 तो यानी कितना बचा? 3000। तो ये जो 3000 है ये आपका शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आई बात?